Okay, so in the last session we studied pressure of gas. हमने एक क्यूबिकल वेसल लिया था, उसमें हमने एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस को एनक्लोज कर दिया था, एंड देन वी फाउंड आउट व्हाट इज प्रेशर ऑफ अ गैस. एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इक्वेशन. प्रेशर ऑफ अ गैस, इसका जो इक्वेशन आया था, दैट वाज 1/3 रो CRMS स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारे बहुत काम का है. क्यों काम का है ये अभी आप देखोगे. वी नीड टू establish a relation between RMS velocity and temperature, क्योंकि as I told you, अल्टीमेटली जब हम गैस का स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 या 4 वेरिएबल है जिसके थ्रू हम गैस का स्टडी कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी. एंट्रोपी we will not talk in physics. Maybe you will come across entropy in chemistry but not in physics. Okay, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हमको हमारे लिए ये 3 थर्मोडायनामिक वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, राइट. तो वी वांट टू सी हाउ CRMS, root mean square velocity, depends on temperature. Okay, so we want to establish a relation between these two quantities. So relation between CRMS, RMS velocity and temperature. And when I say temperature, I mean absolute temperature. And absolute temperature matlab temperature measured in Kelvin scale. So absolute temperature. Right. So बहुत easy सा derivation है. It is extremely easy. So you will start with saying, of course, now we know pressure of a gas is given by. We know that pressure of a gas is given by P is equal to 1/3 rho CRMS square, right? You already know this. और आपको rho पता है, ये होता है mass per unit volume, right? So therefore you have pressure equal to 1/3 mass per unit volume into CRMS square. This is what you already know. Therefore you can write down PV is equal to 1/3 m CRMS square. And by the way, आपको और एक चीज पता होनी चाहिए. You need to know one thing कि kinetic theory के assumptions हमने पहले ही बता दिया था कि according to assumptions of kinetic theory, molecules of the gas are non-interacting. मतलब वहां पे potential energy है ही नहीं, क्योंकि molecules are not interacting. तो जो भी energy है that is kinetic energy. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. We need to mention this. तो स्टार्ट मैं वहीं से करूंगा. We have to say this. We have to put down this here. According to assumptions of kinetic theory of gases, the molecules of ideal gas, the molecules of an ideal gas are non-interacting, and hence there is no potential energy. वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन से आती है, ये पता होना चाहिए. So there is no potential energy. So when I say energy of gas, I am talking about kinetic energy, and that kinetic energy of gas is nothing but internal energy of gas. तो बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मूव हो रहे हैं, हर एक के पास काइनेटिक एनर्जी है. इन सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन
आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस देगा। और हम अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने वाले हैं, जहां जहां पे CRMS ऐसा दिखा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ऐसा लिखता mc1 स्क्वायर, तो मैं पहले मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आपने CRMS, व्हेन यू टॉक अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, एक सिंगल मॉलिक्यूल की नहीं, टोटल की, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको जब CRMS मतलब RMS वेलोसिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन डिराइव करना है, तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर assumptions ऑफ KTG। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सबसे इंपॉर्टेंट assumption था कि मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब only energy is kinetic energy, there is no potential energy at all. Then you say we know that pressure is 1/3 rho CRMS square, so pressure is 1/3 mass per unit volume। ये वॉल्यूम है, V stands for volume here, CRMS square, तो PV is equal to 1/3 mCRMS square, right? बट हमको क्या करना है, हमको CRMS और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। सो यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बट एज यू नो PV is equal to nRT, इक्वेशन नंबर 2। therefore from 1 and 2 PV की जगह पे nRT लिखो पहले इक्वेशन में। so therefore from 1 and 2 you will have nRT equal to 1/3 m CRMS square, okay? But let us say for 1 mole of a gas, for 1 mole of gas, मतलब for n equal to 1, that is n equal to 1, okay? अब जब n की वैल्यू 1 है तो आपको ये भी पता है ऑल्सो, हमने नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कैसे किया था, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, राइट। अगर n1 है, ओके, अगर n1 है तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 इक्वल टू m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम, ओके। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, आप अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे तो यू विल गेट RT 1/3। एज आई टोल्ड यू, मास इज मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट नाउ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, एंड बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। बट n इक्वल टू 1 है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट और मास इन ग्राम दे आर इक्वल। सो ये आपको मिल जाएगा CRMS स्क्वायर, राइट। अब मैं इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो 3RT इक्वल टू m0 CRMS स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, दोनों साइड को डिवाइड बाय 2 करते हैं, राइट। तो once you divide by 2 what you get is, अब आप देखो R कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि फॉर अ गिवन गैस मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होगा ना। अगर मैं हीलियम गैस बोल रहा हूँ तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट विल बी कांस्टेंट, अगर मैं हाइड्रोजन गैस बोल रहा हूँ तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट विल बी कांस्टेंट, ओके। तो फॉर अ गिवन गैस, for a given gas m0 is constant, okay, and therefore you will have CRMS square directly proportional to temperature, क्योंकि ये constant, ये भी constant, okay। So therefore you will have root means for velocity as directly proportional to root of absolute temperature। तो हमको मिल गया रिलेशन बिटवीन CRMS and root of T। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। आपको प्रेशर ऑफ अ गैस का इक्वेशन पता होना चाहिए, हमने कल ही डिराइव किया था लास्ट सेशन में, 1/3 रो CRMS स्क्वायर। बट व्हाट इज रो? रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम को सिर्फ शिफ्ट कर दिया, PV इक्वल टू 1/3 m CRMS स्क्वायर, बट PV इज nRT,
तो पीवी की जगह पे यहाँ पे आप एनआरटी लिखोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, एनआरटी इक्वल टू 1/3 mcrm²। बट फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n इज 1, और आपको ये भी पता है कि n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में, n की जगह पे 1 डालो और m की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट डालो, एंड देन you see this is constant, तो CRMS² is proportional to T, तो CRMS is proportional to square root of T। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखोगे हम न्यूमेरिकल में हमको ये फॉर्मूला लगने वाला है। सो व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस? ओके, what do you understand from this? You understand that root mean square velocity of molecules of gas is directly proportional to square root of absolute temperature. Thus root mean square velocity of molecules of gas is directly proportional to square root of absolute temperature। Okay, so this is what you need to know। और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, there is nothing at all here। Now one important thing that you will need a lot while solving numericals, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपके पास अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका मिला के काइनेटिक एनर्जी। आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं अगर यूनिट वॉल्यूम लेता हूं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेता हूं, उसमें जितना गैस है उसका कितना काइनेटिक एनर्जी। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस है उसका कितना काइनेटिक एनर्जी। या आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी। ओके, या आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके पास 1 किलोग्राम गैस है उसका कितना काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो याद रखना दिस इज समवेयर समथिंग वेयर यू कैन get confused very easily। अब तक हमने इवन यहाँ पे ये जो हमने लिखा है दिस इज काइनेटिक एनर्जी, बट दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था दैट यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे गैस, मतलब गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना भी उसका वॉल्यूम है, जितना भी उसका मास है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, सबका टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे हाफ mcrms² से हम लोग दे सकते हैं, राइट। बट नाउ व्हाट वी वांट टू डू, क्योंकि ऑब्वियस है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको लगने वाले हैं सो दैट यू कैन solve numerical on this। So one thing in your book this topic is not covered, but yes in the numericals they have asked you, so I will want that you know this formulas, and this is very simple। So let us derive expressions for number A, kinetic energy of gas। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बोल रहा हूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, राइट। तो इजी है, वी नो दैट what you know is equation of pressure, and that is why I told you it is very important।
So pressure is 1/3 rho. Rho is mass per unit volume, CRMS square. तो ये आपको मिल जाएगा 3PV, सिर्फ 3V को शिफ्ट किया, ये आ गया आपका MCRMS स्क्वायर. ओके, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, हाफ MCRMS square. So as I told you that half MCRMS square is nothing but total energy. मैंने अभी अभी बताया आपको, M is mass and CRMS is speed, RMS velocity. Okay, so you can say, but 1/2 MCRMS square is काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. और मैं जब बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी. तो ये टोटल एनर्जी का भी इक्वेशन है. ओके, सो देयरफॉर यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस is half CRMS square, but half CRMS square is 3/2 PV. 3/2 PV. Okay, but as you know, there is no potential energy, but there is no potential energy. Therefore, total energy is equal to kinetic energy. Total energy E is equal to kinetic energy, that is equal to 3/2 PV. Okay, तो ये पता होना चाहिए आपको. Then ये हो गया पहला एक्सप्रेशन हमारा. Kinetic energy of gas is 3/2 PV. This is expression number 1, let us say. Okay, तो अगर आपको बोला होगा what is kinetic energy of a gas at pressure of 2 atmosphere and occupying a volume of 10 meter cube, तो pressure of 2 atmosphere से आपको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट एसआई यूनिट. तो 1.013 into 10 power 5, मैं इसको रफली 1 मान लेता हूँ, डजंट मैटर. तो ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल में. वॉल्यूम आपको बोला है 10 मीटर क्यूब, तो आपको मिल जाएगा 3/2 into P, दैट इज 2 into 10 power 5 into 10. कैंसल, तो 3 into 10 power 6 जूल में आपका आ जाएगा. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. अगर पूछा गया व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो राइट. दूसरा, दे मे आस्क यू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो अब ऐसा हो सकता है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें टोटल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, बट हमको देखना है कि 1 मीटर क्यूब में, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट मतलब 1, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना काइनेटिक एनर्जी है गैस का. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. Okay, this is what you are saying. Kinetic energy per unit volume is total kinetic energy upon volume. So kinetic energy per unit volume is equal to kinetic energy upon volume. What is kinetic energy? अभी आपने फाइंड किया 3/2 PV अपॉन वॉल्यूम इज V और V कैंसल. तो आपको मिल जाएगा kinetic energy per unit volume as 3/2 into P. So this is kinetic energy per unit volume. So this is kinetic energy upon volume. Simple equation, right? So simple चीजें हैं. Only thing is that you need to know such things because you will have to use this in exams. Then अब हमको देखना है हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल. एक मोल में कितना काइनेटिक एनर्जी है. सो लेट्स सी हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज देयर.
काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। हो सकता है मेरे पास 5 मोल्स ऑफ गैस है, उसका टोटल एनर्जी दिया है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो हमारे पास 5 मोल्स है, मान लो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ गैस 20 है, 20 जूल्स है, सम नंबर, मैं सिर्फ एग्जांपल के देता हूं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि एक मोल ऑफ गैस के पास कितना एनर्जी, तो 4 जूल पर मोल। तो सिंपल सिंपल। तो टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो यही करना है अब हमको। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो व्हाट वी विल डू इज काइनेटिक एनर्जी per mole of a gas is total kinetic energy upon number of moles, but total kinetic energy is 3 by 2 pv and then by n. But as you know, this is ideal gas, but pv is equal to nRT. This is ideal gas equation. Therefore kinetic energy per mole is 3/2 पीवी की जगह पे एनआरटी और अपॉन एन था ही, सिर्फ पीवी की जगह पे मैंने एनआरटी लिखा है और अपॉन एन था ही, तो एन एन कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल एज 3/2 आरटी। आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 आरटी। ओके, आई विल कॉल kinetic energy per unit volume is 3/2 P as equation number 2. I will call kinetic energy per mole 3/2 RT as equation number 3. Right. So these are some basic things that you have to know. This is what you need to know. Then ये हो गया. Then you have next. अभी क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो आपको हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये भी इजी है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? आपको पता है एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? यू नो वन मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर, आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल है ऑलरेडी। यू हैव ऑलरेडी, यू नो। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे पास ऑलरेडी एक मोल ऑफ गैस का काइनेटिक एनर्जी है 3/2 आरटी। एक मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं इसी टर्म को डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देता हूं तो मुझे पर मॉलिक्यूल का एनर्जी मिल गया। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वी नो दैट 1 mole of gas, 1 mole of gas contains Avogadro number of molecules. Okay, and therefore kinetic energy per molecule is equal to kinetic energy per mole divided by Avogadro's number. Divided by Avogadro's number Na. राइट? ये चीज अच्छे से सोचो तो समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक मोल ऑफ गैस का काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, हमें हर एक मॉलिक्यूल का निकालना है। ओके,
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको जस्ट एज एन एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरे पास 1000 रुपीज है, मतलब टोटल हमारे पास 1000 रुपीज है और हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है, राइट? तो इफ आई आस्क यू कि हर एक के पास कितना जाएगा, आप क्या करोगे? 1000/100 बोलोगे, हर एक के पास 10 जाएगा। तो दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज। ये है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल में कितना काइनेटिक एनर्जी। ये है एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्हेन यू डिवाइड काइनेटिक एनर्जी per mole by Avogadro number, you get kinetic energy per molecule. Okay, so this is what you need to understand, because in exam this is, if you understand this, then it is simple. So therefore you will have kinetic energy per molecule, मतलब upon molecule, as kinetic energy per mole, और per mole तो आपने 3/2 RT निकाल के रखा है इक्वेशन 3 से। 3/2 RT you have already found this। अपॉन क्या था लेफ्ट हैंड साइड में? अपॉन था एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल्स, अपॉन Na। तो आपको मिल गया ये 3/2 R/Na into T। बट इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू R/Na is nothing but Boltzmann constant Kb। okay, therefore you will have kinetic energy per molecule is equal to 3/2 kBt। ओके, क्योंकि सिर्फ मैंने R/Na की जगह पे kb सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट what is kinetic energy per molecule। So this is also an important equation, equation number 4th, if I'm not wrong, it is 4th, right? then हमको देखना है what is kinetic energy पर यूनिट मास। एक यूनिट मास में कितना काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो मतलब 1 kg का कितना काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एंड हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? तो ये आता है आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्यों ऐसा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m0, ये मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कैसे देगा? तो ये आ जाएगा ke अपॉन n इंटू m0। बट इफ यू रिमेंबर, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स वाज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं जब ऐसा लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में जब मैं लिखता हूँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैंसल, क्या बचा आपके पास? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। गुड। तो थोड़ा सा कनेक्ट करते जाओ, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक्स। एंड आई एम टेलिंग यू, केटीजी जितना सिंपल और केटीजी जितना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है अगर इफ यू डोंट कनेक्ट। only idea is to understand things, right? So we know that ये important है, you need to know this, we know that। okay, आप यहाँ बोल सकते हो कि number of moles is mass upon molecular weight। okay, so hence you know mass is n into molecular weight, और मॉलिक्यूलर वेट m0 होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। इफ यू डोंट नो, आई विल जस्ट नोट इट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वी यूज। हमने सबसे पहले डिफाइन किया था, उसमें लिखा ही था, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स। तो यहाँ पे m0 इज मॉलिक्यूलर वेट। okay, so right, okay, therefore
as you know, kinetic energy हमको चाहिए पर यूनिट मास. So kinetic energy per unit mass is equal to kinetic energy per mole upon molecular weight, okay, which is equal to kinetic energy upon n into m0, which is equal to kinetic energy upon mass. Okay, this mass is not molecular weight. m0 is molecular weight, this is just mass. Okay, per unit mass. तो अब आपके पास you already have formulas with you. So even if I do not write this, it is okay. Even if I do not write this, it is still okay. मुझे सिर्फ बताना था कि कैसे आया. Why you are writing kinetic energy per unit mass as kinetic energy per mole upon molecular weight? से मुझे ये बताना था कि कहाँ से आया ये. So what is kinetic energy per mole? 3/2 RT अभी अभी डिराइव किया था हमने upon molecular weight m0, right? Good. तो ये आ गया आपका 3/2 RT by m0. This is what you have done. बन गए formulas. तो just for the sake of quick revision and so that you have formulas ready in hand, we will make a table and note down all the formulas that we have derived. और ये बहुत काम की चीज है. So you need to know, this is very very important. Okay, so you have kinetic energy here, and you have formula here. So first, total kinetic energy. If you remember, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था 3/2 PV. दूसरा हमने फाइंड किया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे पास आया था 3/2 P. तीसरा हमने फाइंड किया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब डिवाइड बाय n, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमारे पास आया 3/2 RT. देन हमने इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर मॉलिक्यूल हमने डिराइव किया था. ये आया था हमारे पास 3/2 kBT. ये इंपॉर्टेंट भी है 3/2 kBT. अगर ये आपको पता है तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज. एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ में आया तो आगे का पूरा केटीजी समझ में आएगा. And lastly, we derived what was kinetic energy per unit mass, and ये था 3/2 R upon molecular weight into T. So this formulas you will be requiring at some point of time to solve numericals. आपको लगने वाला है ये. Okay, so this is what you need to know. Good. So enough of theory for today. Let us do some basic simple numerical. Example 3.1. Obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324 pm. What is P? P is picometer. Pico मतलब 10⁻12 meter. Assume that the gas is ideal. So what is given to us? We have been given first, that is temperature. And as I told you, यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर एब्सोल्यूट मतलब केल्विन स्केल में चाहिए, तो पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लो. देन प्रेशर इज गिवन टू अस व्हिच इज 1
atmospheric pressure, and as you know, 1 atmospheric pressure is roughly 1.013 into 10 power 5 Pascal. Okay, so this is 1.013 into 10 power 5 Pascal, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. देन मॉलिक्यूलर डायमीटर मतलब डी आपको दिया हुआ है 324 पिकोमीटर, एंड पिको इज 10 पावर -12 मीटर. Okay, this is what is given to you, and what you are supposed to find out is mean free path. So you're supposed to find out is lambda, and if you remember, lambda का फॉर्मूला हमने in terms of diameter of molecule लिखा था. If you remember, it was 1 upon under root of 2 pi d square n by v. Okay, so this is something that you need to know. This is something that we have seen in, I mean, last few lectures, 2 लेक्चर पहले हमने ये देखा था मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. मैंने आपको ये भी बताया था कि समटाइम्स इन हरी यू में एंड अप राइटिंग अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी एन बाई वी. तो मैंने बताया था कि ये डी अगर लिखोगे तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है, तो यू नीड टू पुट डी स्क्वायर देयर. ओके, सो solution is pretty simple. So lambda mean free path is 1 upon under root of 2 pi d square n by v. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास v का इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास n का इंफॉर्मेशन भी नहीं है, राइट. तो हम क्या करेंगे? बट वी नो दैट दिस इज एन आइडियल गैस. Okay, for ideal gas, PV is equal to NKT. If you remember, NKT where K is Boltzmann constant. कभी इसको KV भी लिखते हैं. It is okay if you write down K or KB, that is fine. But just don't get confused between dielectric constant K, Boltzmann constant K, and 1 upon 4 pi epsilon 0 constant K. थर्मोडायनेमिक्स में और KTG में K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, K भी होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट. तो इन एनी केस, therefore from here you will have P upon KBT as N by V. This is equation 2. I will substitute this in equation number 1. Okay, तो मैंने सिर्फ N by V की जगह पे P by KBT सब्स्टिट्यूट करना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास N और V का इंफॉर्मेशन ही नहीं है. P है यस, T है यस, और K भी तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो वो तो पता ही होता है, पता होना चाहिए. Therefore from 1 and 2 what you have is, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो lambda is equal to 1 upon under root of 2 pi, okay, d square n by v is P by KBT. तो ये जो by KBT है इसको मैं ऊपर भेज देता हूं, तो मैं लिख देता हूं KB into T. So therefore you will have lambda is equal to mean free path is equal to, अभी KB की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.38 into 10 power -23 जूल पर केल्विन आता है ये, -23, that is okay, and into 273 Kelvin is temperature upon root 2 is 1.414 into pi is 3.14 into d square molecular diameter का square, मतलब 324, if I am not wrong it was 324 picometer, 10 power -12 मीटर का square, और pressure if I am not wrong 1 atmospheric था, तो 1 atmospheric pressure होता है 1.013 into 10 power 5. तो सारे कैलकुलेशंस अभी आपको करने पड़ेंगे, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू यूज लॉग टेबल्स टू डू कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशंस का पार्ट जो है ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा. आई कैन जस्ट help you out roughly, but then exact calculations you are supposed to do. For example, I will tell you how to do rough calculations, okay, and do not take it otherwise. वो rough JEE NEET CET में चल जाएगा जहां पे एग्जैक्ट रखने वाला है. तो क्या करेंगे? As I told you, सबसे पहले 10 के जो पावर है उसको एडजस्ट करो.
सबसे पहला काम ये होता है 10 पावर माइनस 23 ऊपर था, नीचे देखो 10 पावर माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 24 इंटू 10 पावर प्लस 5, करेक्ट। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर, चलो पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, दिस इज 10 पावर माइनस 19, ऊपर गया तो प्लस 19, तो 10 पावर माइनस 23 इंटू 10 पावर प्लस 19 दैट इज 10 पावर माइनस 4। तो 10 के पावर एडजस्ट करने के बाद माइनस 4 बचा, ऊपर आया 1.38 इंटू 273 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ गया ऊपर, अपॉन 1.44 इंटू 3.14 इंटू 324 का स्क्वायर। 324 का स्क्वायर ले लो आप, या फिर आप इसको 350 का स्क्वायर या 325 का स्क्वायर रफली मान सकते हो। ओके, यू कैन टेक इट रफली। सो 324 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज दिस calculations, yes, you are supposed to do by yourself, but I can just tell you मैं इसको ऐसा करूंगा 324 into 324 for the time being, मैं बाद में इसका एडजस्टमेंट देख लूंगा। ये 1.013 को मैं 1 लिखने वाला हूँ, so I am not going to do a lot of calculation work here, मुझे नहीं करना है, I will just write down 1। ये 1.38, ये 1.44 रफली गया, अप्रोक्सीमेटली गया, ये 273, ये 324 अप्रोक्सीमेटली, इसको भी गायब। ओके, तो ये आ गया आपके पास 10 पावर माइनस 4, ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आपके पास 324 इंटू 3.14 है, राइट। रफली ये 1000 है, रफ 324 इंटू 3.14, 300 इंटू 3 900, 324 इंटू 3.14 900 के बहुत ऊपर, रफली 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000। ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 7 होगा। ओके, यू नो व्हाट इज एग्जैक्ट आंसर, इट इज 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ 0.8 की जगह पे 10 पावर माइनस 7 बोला है। तो मेरे केस में जो रफ कैलकुलेशंस है, यहाँ पे आपका आंसर आया 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 अप्रोक्सीमेट, एंड दैट इज ओके बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। तो फॉर द पर्पस ऑफ जेईई नीट सीईटी, ये जो मैंने मेथड बताया है कैलकुलेशंस का, यू कैन जस्ट फॉलो दिस, बट व्हेन यू आर डूइंग द सेम फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, you will have to use log tables, reciprocal tables, square tables, तो ये करना पड़ेगा आपको। okay, there is no alternative to it, you will have to do that। then next and the last question for today, at 300 Kelvin what is RMS speed of helium atom? So given is T equal to 300 Kelvin, RMS स्पीड आपको पूछा है और आपको दिया है मास ऑफ हीलियम एटम इज 4u। मास मतलब यू नो व्हाट इज मास, ओके। ये यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर की जगह पे एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हीलियम गैस, हीलियम एटम ही बोला है, वैसे भी हीलियम गैस इज मोनो एटॉमिक गैस, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर गैस। ओके, हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर होता है, और U की वैल्यू भी दी है, वेर U इज एटॉमिक मास यूनिट, आपने सीखा होगा ये 1.66 into 10 power minus 27 kg, and then you have Boltzmann constant Kb as 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin। ओके, तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आपको पूछा है व्हाट इज CRMS, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। सो इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला आज ही हमने डिराइव किया, ओके, नॉट यस्टरडे, नॉट डे बिफोर यस्टरडे। CRMS, ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब टू बी फ्रैंक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो RT इक्वल टू 1/3 m0 CRMS स्क्वायर, मतलब CRMS square is equal to 3RT by m, मतलब CRMS is root of 3RT by m, this is what we have derived today। तो m m0 मतलब molecular weight।
So this is the formula that you will be requiring to solve that particular question. तो आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, right? So that's it. This is pretty simple thing now. Once you know this, done. CRM is equal to under root of 3. अभी आप बोलोगे तो फिर R तो पता नहीं है, तो R नहीं पता है तो हमने ये KBT के फॉर्म में भी लिखा था, तो R की जगह पे you can also write the same formula in terms of KB. तो वो कैसे लिख सकते हो, वो फॉर्मूला कैसे आता है? तो you will get this as 3 KBT by M. Okay, वो कैसे आता है? I will tell you, but next time onward you need to know by yourself. Number of moles is mass upon molecular weight. तो यहां से molecular weight M0 is mass upon N. Okay, so you will be writing down 3RT upon mass upon N. ये जो upon N है इसको मैं भेज देता हूं ऊपर. Okay, and N into R is KB. ये हमने पहले ही देखा. So this is 3 KBT by M. This is ये हमने पहले ही देखा है. ओके, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. अंडर रूट ऑफ 3 into KB 1.38 into 10 power minus 23. 10 power minus 23 into T is 300. 300 upon mass is 4 times of U. So 4 into U is 1.66 into 10 power minus 27. Okay, तो ये कैलकुलेशन अगेन आई विल कीप इट फॉर यू, बट वापस वही है, पावर्स को एडजस्ट कर लो. ये 2 0 और ये 10 पावर माइनस 23 विल बी 10 पावर माइनस 21. ये 10 पावर माइनस 27 ऊपर आएगा तो प्लस 27 होगा. ऑलरेडी 10 पावर माइनस 21 और ये प्लस 27 मतलब 10 पावर प्लस 6, राइट? बाकी के चीजें आप खुद कैलकुलेट कर लोगे. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस बाय योरसेल्फ. तो फाइनली आपको आंसर मिलना चाहिए 1368 मीटर पर सेकेंड. तो कैलकुलेशंस यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, ओके, बिकॉज आई कैन ओनली टेल यू ट्रिक्स एज आई टोल्ड यू, बट अदर थिंग्स, और ये इजी है बिकॉज दिस इज इजी. आई विल टेल यू, अभी मैं बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेशंस आपको करने हैं. आई विल टेल यू वेरी क्विकली. देखो, मैंने आपको पावर्स का एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी बता दिया. मतलब अब देखो बचा क्या, 3 बचा ऊपर, 1.38 बचा ऊपर और एक 3 बचा ऊपर. नीचे बचा 4 into 1.66 और यहाँ पे 10 पावर 6. ये 3 into 3 9, उसका स्क्वायर रूट 3. नीचे 4, उसका स्क्वायर रूट 2. 10 पावर 6 का 10 पावर 3 और यहाँ पे 1.38 अपॉन 1.66. 1.38 upon 1.66 roughly 0.81 आएगा. roughly 0.81. तो you should know 3.2 is 1.5 into 10 power 3. ये roughly 0.81 आया, मतलब 81 into 10 power minus 2 आया. मतलब ये वापस से 1.5 into 9 into 10 power 3 into 10 power minus 1. 15 9 आपको पता होना चाहिए, 135 मतलब 13.5 into 10 पावर 2 मतलब 1350. तो मेरा आंसर क्या आया फिर? 1368. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीख लिए अगर, तो फिर आपके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस. So that's it for today. We are going to stop today.